Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the basic idea of the hyperbola, the how hyperbola is generated as one of the another conic. So hyperbola is the locus of all the points moves in a plane such that its difference from two fixed points is always a constant. So Pf1 minus Pf2 is always a constant. The generating curve is like this, having two congruent curves, wherein the center in our syllabus we consider that as an origin, but that is not always true. It may be at 1 comma minus 3 also, something like that. And axis जो हम ले रहे हैं, instead of the major axis, now x axis वाला part कहलाएगा transverse axis and y axis वाला हो जाएगा conjugate axis. So terminology भी आपको clear होनी चाहिए. Then the point of intersection of transverse axis and the curve is referred to as this vertices. Two vertices a comma 0 minus a comma 0. And here the equation of this hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. This is the type 1, the horizontal type hyperbola. We also do talk about, say, the hyperbola of the following type, like this, two congruent curves. Now again, seems to be similar to a parabola, but totally different curve from the parabola. Total algebraic, total different geometrical properties. So if this is the vertical parabola, oh sorry, hyperbola, so its equation is x square by a square minus y square by b square equal to minus 1. As already mentioned, NCERT में यहाँ b square पहले लिखा हुआ है x square के नीचे, so that is little bit confusing. Therefore, I prefer to go with simple kind of formulas based on जैसा हमने ellipse में याद किया था. So terminologies I believe याद आ जाएंगी. If I talk about specifically say latus rectum, so latus rectum for a parabola ये लेंथ हो गई, फोकस से जो परपेंडिकुलर लेंथ गई है. फॉर इलिप्स ये लेटस रेक्टम है या ये लेटस रेक्टम हो गई, बिकॉज साइड इसके दो हो रहे हैं. सेम वे फॉर हाइपरबोला, फोकस से जो ये परपेंडिकुलर लाइन गई है ये हो जाएगा. दिस इज रेफर टू एज द लेटस रेक्टम. एंड देन फाइनली few other terminologies followed by the list of formulas to be used. I in fact shared the specific screenshot of this slide. So एक बार quickly recall कर लीजिए. And very important observation, except the formula for eccentricity, इसको छोड़कर बाकी जितने formulas हैं ये वाले, they all match with ellipse only. Same फॉर्मूलाज आपने इलिप्स में स्टडी करे थे. असेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में सिर्फ चेंज क्या है, इन केस ऑफ इलिप्स यहां 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, बट क्योंकि फॉर हाइपरबोला ई इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए यहां पर वो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है. बाकी सारे फॉर्मूला बिल्कुल सेम और सिमिलर जाने वाले हैं. इक्वेशंस फिर एक बार नीचे चेक कर लीजिए लाइक दिस. Based on the formulas, let's begin with few questions. Everyone check this out. Find the length of axis, the coordinates of vertices and foci, eccentricity, and length of latus rectum. Directrices
नहीं पूछा है बट स्टिल वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हर एक चीज पूछी जा सकती है। एंड गिवन दिस हाइपरबोला, तो व्हेन यू नोट केयरफुली x square by 36 minus y square by 64 is 1, रिमेंबर यहां पर a ग्रेटर देन b है और a लेस देन b है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इलिप्स के केस में हमने इस चीज के बेस के ऊपर टाइप 1 माना था इलिप्स, और इसके बेस पर टाइप 2 माना था। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला a और b ग्रेटर हैं लेसर हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। यहां मेन क्या है, RHS में 1 है या -1 है, दैट्स इट। तो अगर RHS में 1 है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया, और अगर RHS में -1 होता तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो जाता, लाइक वर्टिकल हाइपरबोला हो जाता, लाइक दिस। एनीवे ये आपके पास 6 है और 64 को देखकर b स्क्वायर माने b हो गया 8। लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट इट्स एसेंट्रिसिटी। ये फार्मूला तो याद करना है। Substitute the values of a and b and simplify. Check it out, eccentricity आ गई 5/3 and for hyperbola it is always greater than 1, तो greater than 1 आई है, means our calculations is also correct. Once I have eccentricity, अब हम start करते हैं और क्या क्या पूछा है। सेंटर फिक्स है 0 0, वर्टिसेस का फार्मूला ये था प्लस माइनस a,0, a की वैल्यू रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो ये वाली एक्सिस है विच इज x एक्सिस, और उसकी इक्वेशन इसका मतलब हो जाएगी y = 0। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब ये y एक्सिस वाली की बात हो रही है, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है, और ऑफ कोर्स फिर उसकी इक्वेशन हो गई x = 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई का फार्मूला ये होता है प्लस माइनस a,0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड e, a ये रहा और e ये रहा, सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ये आ गया फोसाई के कोऑर्डिनेट। तो रफ स्केच भी देखिए थोड़ा सा मैंने उस तरह से अप्रोप्रिएट बनाने का किया है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सेम फार्मूला 2b²/a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सेम फार्मूला x = ± a/e। सॉल्व करा, ये दो इक्वेशंस आ रही हैं। ये लाइंस कहां पर हैं इस डायग्राम में, कहीं ना कहीं मान लो वो ये निकल रही है, तो एक डायरेक्ट्रिसेस ये हो सकती थी और दूसरी डायरेक्ट्रिसेस सिमेट्रिकली ये हो सकती थी। Once I have all values, सेंटर है, वर्टेक्स पता है, फोकस का पता है, तो इन तीन चीजों से एटलीस्ट, और ये पता है कि ये टाइप 1 वाला हाइपरबोला है, सो नाउ वी कैन इजीली ग्राफ इट। तो ग्राफ ये आ जाएगा आपके सामने है। Any doubt to anyone? Based on this, चलिए check out this question and exercise 11.4 from your NCERT textbook. Find the coordinates of foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum, वही हर चीज पूछ लिया है। Let me consider
सेकेंड क्वेश्चन, बट नोट केयरफुली, यहां वाई स्क्वायर पहले दिया है, मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो ये आ जाएगा, और एक्चुअली इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर बाय 27 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू -1। तो अब ये आ चुका है आपका टाइप 2 वाला हाइपरबोला। मींस किस तरह के हाइपरबोला की बात हो रही है, इस तरह के हाइपरबोला की। तो एक तो ये इतना सा डायग्राम, मतलब इक्वेशन को देखकर ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3√3 का होल स्क्वायर। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, सिंपली 3 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिफाई हो गया मेरी फॉर्म 2 से। तो हेयर a is 3√3 and b is 3। अब फॉर्मूलाज हम स्टार्ट कर देंगे यहां पर, और चेक करिए टाइप 2 में ये फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहली बात ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना रहे हैं, सो इट्स अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, a स्क्वायर का मतलब तो 27 हो गया, b स्क्वायर इज 9, और सॉल्व किया तो e स्क्वायर -1 इज 3 और e स्क्वायर इज 4। e कैन नॉट बी नेगेटिव, e आ गया 2 के इक्वल, पॉजिटिव ही आना था और ग्रेटर देन 1 आना था। वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ e, अब हम स्टार्ट करते हैं यूजुअल अप्रोच। सेंटर तो क्लियरली 0 0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस b। चेक आउट द फॉर्मूला, वर्टेक्स ये रहा 0, प्लस माइनस b, तो दोनों वर्टिसेस हो गए, मींस 0, प्लस माइनस 3। फोसाई का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, प्लस माइनस BE। चेक कर लेते हैं, ये रहा फार्मूला 0, प्लस माइनस BE। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, B था मेरा 3 और E आ गया है 2 के इक्वल। तो फोसाई सिंपली आ गया 0, प्लस माइनस 6। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ से लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, 2a स्क्वायर बाय b। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बस वो वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। 2a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 27 हो गया, और b कितना था 3, तो ये आ गया 18। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 18 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ, कौन सी एक्सिस की बात होगी अब यहां पर, टर्मिनोलॉजीज को देख लीजिए। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो x इक्वल टू 0 है, ट्रांसवर्स एक्सिस माने y एक्सिस हो गया। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट विल बी, एनीवन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला 2b हो जाएगा।
So that is 2 into b कितना था 3, 6 आ गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. क्लियरली x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0 and length of conjugate axis will be 2a, मतलब 2 into 3 root 3 which is 6 root 3. और फाइनली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस की बात कर लेते हैं. डायरेक्ट्रिसिस इसमें कैसी होगी लाइन? एक तो ये देखिए ऐसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाने वाली है लाइन डायरेक्ट्रिसिस. And what is the equation of directrices? Y equal to plus minus B by E. Y equal to plus minus B by E. Substitute the values. Plus minus B और E हमने निकाल लिया था 2 के इक्वल. तो ये तो सिंपली 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो दो लाइंस कौन सी आ गई? 2y माइनस 3 इज 0 एंड 2y प्लस 3 इज 0. सो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपकी डायरेक्ट्रिसिस की. लेबल करके आप डायग्राम थोड़ा बेटर इमेजिन कर सकते हैं कैसा बनेगा. Before we move on, now everyone please mark your attendance. Check out the following questions. Up 4th, 5th, 6th all are similar questions. और अब ये हाइपरबोला है, ये देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं. लेट मी कंसिडर 4th क्वेश्चन. वैसे तो बीच के माइनस साइन से क्लियर हो जाता है, बट दो अदरवाइज ऑल्सो dividing by 576. Make it sure RHS is 1. तो आपने 576 से डिवाइड कर दिया बोथ द साइड्स. और ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 576. 16 पे करा, करिए से डिवाइड कितना आएगा ये नहीं है कि हमेशा कोफिशिएंट क्रॉस में ही हो रहे हैं कि यहां 9 ही आएगा. चेक इट आउट, ये 36 आ रहा है और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब ये नहीं है कि ये 16 ही आएगा, तो वो अब आप चेक करके देख लीजिए कि 576 को जब ये 9 का है तो 64 आ गया एंड इक्वल टू 1. ये करने के बाद हमने क्या नोटिस करा? एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. So this is clearly hyperbola of type 1. टाइप 1 कैसे है? क्योंकि RHS में पॉजिटिव में 1 आया है.
टाइप 1 हाइपरबोला डिसाइड हो गया, बस उसके बाद तो आप ए बी लिख लेंगे और फिर यूजुअल फार्मूलाज। सो टाइप 1 के फार्मूलाज ये वाले हैं, बस अब ये याद होना चाहिए। तो बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. Substitute the values and you will get the value of E from here. अब ये usual है, you can do it in your homework. Make it sure it should come out to be greater than 1. E आ गया, उसके बाद तो आपको पता है सेंटर तो फिक्स था, वर्टेक्स। इसमें डायग्राम एक बार रफ में थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि डायग्राम मेरा कुछ ऐसा जाने वाला है। तो अब आइडिया लग जाएगा, ये वर्टेक्स है, ये सेंटर है और ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, फोकस होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, लेटस रेक्टम होगा 2b स्क्वायर बाय ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस की अगर हम बात करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और यहां पर हम बात करते हैं जब लेंथ ऑफ, क्या कहते हैं इसे, x एक्सिस को, ट्रांसवर्स एक्सिस, टू ए लेंथ ऑफ conjugate axis, that will be 2b. Substitute all the values. और ये आप ऊपर टेबल फिर देख लीजिए, सिर्फ मैंने इस टेबल को यूज किया है। चेक दिस आउट। अब देखिए फर्दर इन क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, जैसा कि हमने इलिप्स के केस में देखा था। अब रिवर्स क्वेश्चन है सारे, ये तीनों एक जैसे हैं। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो आप चेक कर लीजिए। लेट मी कंसीडर, अब मैं वाई एक्सिस वाला ले लेता हूं। चलिए 9th क्वेश्चन, 0 कॉमा प्लस माइनस 3 एंड फोकस दिया है 0 कॉमा प्लस माइनस 5। ओनली 2 थिंग्स आर नॉन टू मी, और इसके बेसिस पे मुझे हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहली बात, वर्टेक्स और फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है। वाई एक्सिस मीन्स ये मेरा टाइप 2 वाला हाइपरबोला हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो एक तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और अब हम अकॉर्डिंगली फार्मूला सोचने शुरू करते हैं रिलेटेड टू दी वाई एक्सिस। तो ये क्या था, वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और फोकस के कोऑर्डिनेट थे, फोकस के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। कंपैरिजन किया, b आ गया 3 एंड बीई आ गया 5। b की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देते हैं। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी 5/3 ग्रेटर देन 1 आई है। अब b तो ऑलरेडी मेरे पास है, इक्वेशन क्या रही होगी इस केस में, ये भी पहले से ही सोच लीजिए। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स -1, क्योंकि टाइप 2 का ये हाइपरबोला है, तो ये इक्वेशन है। अब मुझे b तो पता है, आई नीड ओनली a।
और a निकालने के लिए विच फार्मूला आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ? टाइप 2 के अंदर ये होता है फार्मूला, a स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर इज b स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, e स्क्वायर हो गया 25/9 माइनस 1। सॉल्व इट, a स्क्वायर भी मिल गया मुझे। a निकालने की जरूरत एज सच तो इन जनरल नहीं है, वैसे पॉजिटिव ही आएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, इक्वल टू -1, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या पूछ सकते हैं? आफ्टर यू गॉट द इक्वेशन, few more parts be get added. Also write the equation of its conjugate axis. What is the length of its latus rectum? तो वो सारे टेबुलर जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें आप यूज कर लेंगे and you will get your required answer. Any step which is not clear? फॉर्मूलाज आपको ही याद करने हैं। Check out this question. अब हम एक एक्स एक्सिस वाला देखता हूं, मतलब 10th क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। सोचिए जरा इसका डायग्राम कैसा रहा होगा। Soon I check that foci is on the x-axis. दो तीन चीजें मेरे माइंड में आ जाएंगी। एक, इस तरह का हाइपरबोला है, इक्वेशन ये रही होगी, और फिर अब मुझे पता है ऐसे इलिप्स में फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस AE, 0, और वो दिया है प्लस माइनस 5, 0, सो दैट AE तो मुझे मिल गया 5 के इक्वल। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसकी लेंथ होती है 2a। वो आपको 8 दिया था, तो बस इसके बाद तो सिंपल है, A4 आ गया, वैल्यू पुट कर दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ E विद मी। और फिर कौन सा फार्मूला? B स्क्वायर इज A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। ओपन द ब्रैकेट, ये कर देंगे। क्यों किया यहां ओपन? क्योंकि AE मुझे डायरेक्ट गिवन था, और A स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर आ गया, दिस इज सिंपली 3 स्क्वायर, तो B आ गया 3 के इक्वल। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, बस लास्ट स्टेप है, एक्स स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय B स्क्वायर इक्वल्स 1, योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लीजिए, वेरी सिमिलर क्वेश्चन।
ये यहीं पर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं 12th क्वेश्चन। अब सिर्फ थोड़ा सा कंडीशन में क्या चेंज करा है, फोसाई के साथ आपको लेटस रेक्टम की लेंथ दे दिया है। चेक दिस आउट। 15th क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिए। टू थिंग्स आर गिवन। फोसाई दिया है ऑन वाई एक्सिस, तो क्लियरली ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया टाइप 2। और जैसे ही मैंने ये सोचा टाइप 2, ये चीज पहले मेरे माइंड में आ जाएगी कि ये इक्वल टू -1 वाला केस होगा। और वो इमेजिन करते ही बस ये कंपेयर किया और फिर कह रहे हैं पासिंग थ्रू 2,3 है। तो बस पासिंग थ्रू 2,3 का मतलब इस इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे। और अभी भी देखो इनकम्प्लीट है, ये दो रिलेशन तो आ गए। एक और रिलेशन हमें पता है सेकंड वाले हाइपरबोला के लिए, a² इक्वल टू b² इंटू e² -1 होता है। तो ये भी आपको रिलेशन की यहां रिक्वायरमेंट रहेगी। सो नाउ यू हैव 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स a, b एंड e। तो अब इन्हें आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो मेथड ऑफ सॉल्विंग में वेरी, वो अब आपको डिसाइड करना है कैसे आप सॉल्व करना प्रेफर करेंगे। चेक आउट द अनदर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। अब ये एनसीईआरटी से नहीं है, असाइनमेंट से है। सो कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क। वही है, दो कंडीशंस गिवन होंगी, यू कैन इजीली सॉल्व इट। नाउ एग्जाम्पल 16 ये बुक का ही है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। सो डू इट अगेन इन योर होमवर्क। All conditions are mentioned, very simple type of a problem. Next, हम बात करते हैं about the rectangular hyperbola. तो rectangular hyperbola जनरली हमने क्या देखा, हाइपरबोला इस फॉर्म में होता है x² by a² minus y² by b² is equal to 1 or -1. But we have the special type of hyperbolas referred to as the rectangular hyperbola, and they have got the equation of the form xy is equal to a. Simply the product xy is involved. So xy is equal to a is also the hyperbola. और एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, let a is 1. a is any real number, तो a को 1 ले लिया, मतलब xy आ गया 1 के इक्वल। और इससे y कितना आ जाएगा 1/x, और y इक्वल टू 1/x याद करिए चैप्टर 1 में किया हुआ है। चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में जब ग्राफ की बात करी थी एज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न, ये इस तरह से जाता है, ये कभी भी टच नहीं करेगा x और y एक्सिस को। x एंड y एक्सिस इसके लिए एसिम्पटोट्स हो जाते हैं।
तो ग्राफ देखने से आइडिया लग रहा है ना कि ये एक्चुअल में हाइपरबोला के ही पार्ट रहे होंगे। वो कुछ ऐसा सिचुएशन रही होंगी अब इसकी एक्सिस की, समथिंग लाइक दिस। So this is a special kind of a hyperbola. So this is all about what we require in this chapter. दो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो we do have the idea of the word problems also, but they are not to be covered in our syllabus. कुछ आइडिया दे देता हूं, that is based on your NCERT miscellaneous exercise. I will share these slides, only the solution वाला part, but this is not in our syllabus, तो एग्जाम में ये नहीं आएगा। So इस तरह से एप्लीकेशंस की बात करी गई है हाइपरबोला की, इलिप्स की, पैराबोला की इन रियल लाइफ। So थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, but I have solved them neatly और बिल्कुल clearly that you all will be able to understand these questions. So those who are preparing for competitive exams, they must check out these slides. Otherwise, you can always avoid these. और मैं फिर यहाँ बता देता हूँ कि this is not in our syllabus. बट अभी स्टिल हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। We do have the last thing जो हम असाइनमेंट के थ्रू बात करते हैं, various types of parabolas, ellipse and hyperbolas wherein the center is not 0 0 or their axis is not only x-axis, तो वो inclined भी हो सकते हैं, right? तो किस तरह के, मान लो हाइपरबोला कोई मेरा ऐसा है like this, या पैराबोला है कोई मेरा, मान लो वो ऐसा पैराबोला है। तो इस तरह के केसेस हैं, इसमें हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। चले, क्विकली mark your attendance and leave the class.